ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं सतं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सागण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधाकान्त नमोऽस्तु ते तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीकृष्णचैतन्य ईश्वरं गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. And then I have some prayers. There are 4 prayers we can all recite together. Some of you, I think kids may even know them. So these are the prayers to Lord Jagannath, Baldev, Subhadra, all 3 of them. So let's say this. And whoever wants to read the translation, they're there. I will not read them, but I have them on the slide if you're interested. नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्रा सुभद्रभ्यां जगन्नाथाय तायते नमः। देवदेवा जगन्नाथा प्रपन्नार्ति विनाशना त्राहि मां पुंडरीकाक्षा पतितं भवसागरे. Actually, let's read the translations also. So this was for all 3 of them. I offer my humble, prostrated obeisances to the eternal supreme power, Sri Jagannath, the super soul of all living entities who resides with his divine elder brother, Sri Balbhadra, and little sister, Srimati Subhadra, in the most holy abode of Nilachal, Puri, Nitya Vaikuntha. So this prayer was for all 3 of them. This prayer was for Lord Jagannath. O God of gods, Deva Deva, O Jagannatha, the Lord of the universe, Jagatnath, Lord of the universe, please destroy this great distress that has overcome me. O lotus-eyed one, Pundarikaksha, you know, Pundarikaksha means jiske aksh or eyes are like Pundari, lotus. Please deliver this fallen soul from the ocean of material existence. Patitam bhava sagare, that I have fallen into this material existence. Please save me from this ocean of material world. This next prayer is for Lord Balbhadra or Lord Baldev, Balramji. So this one says, Namaste halagraha, namaste musalayudha, namaste revati kanta, namaste bhaktavatsala. Obeisances to you, O holder of the plough, halagraha. Obeisances to you, O wielder of the mace. Mace and plough, gada and the plough are the 2 main instruments or weapons that Lord Balram carries. Musalayudha, musal is mace. Obeisances to you, O darling of Revati, Revati Kanta, husband of Revati. Obeisances to you who are very kind to your devotees, Bhaktavatsala. So this is Lord Balram. Then this is for Subhadra Mai. जय देवी भक्तिधात्री प्रसीदा परमेश्वरी जय देवी सुभद्रा त्वं सर्वेषां भद्रदायिनी. All glories to you, the bestower of bhakti. You are famous as the supreme controller of these material universes. All glories to you, Subhadra Devi, the giver of auspiciousness to one and all. And then there is a 4th personality that stands with Jagannath Baldev Subhadra Mai, and that is Sudarshan Chakra. So Sudarshan Chakra is maybe in one of the pictures you saw. Let me show you. Is in the form of a danda standing next to Lord Jagannath ji.
I think in this, yeah, you can't see, but on this side you can see. And of course, Sudarshan Chakra is on the top of Jagannath temple. So it is said that even if you cannot get into the temple, because temple has very strict rules on who can enter into the temple. So even if you're not able to enter into the temple, even if you can get darshan of the Sudarshan Chakra on top of the temple, जगन्नाथ मंदिर के शिखर पे जो सुदर्शन चक्र है, अगर आप उसके भी दर्शन ले लो, so that's as good as getting the darshan of Jagannath Baldev Subhadra inside. So the Sudarshan Chakra is on top of the Jagannath Mandir, as you can see. So it says, Sudarshan Mahajwala Koti Surya Samaprabha Ajnanatimirandhanam Vaikuntabda Pradarshaka. O Sudarshan, your great effulgence is as brilliant as millions of suns. You dispel the darkness of ignorance and thus reveal the path to the eternal world of Vaikuntha. So with that, let's start. So before we get into Jagannath Ashtakam, I want you to understand a few things about Jagannath Puri Dham. Okay. Nagarchand Prabhu, can you still see my full screen properly? Yes. Yes, I can. Yes. Okay. Okay. So I want you to understand a few things about Jagannath Ji, about Jagannath Puri Dham. So first of all, I want to tell you a couple of stories. Okay. And they're relevant, so please bear with me. We'll start with maybe one story, get into the Jagannath Ashtakam, and then reveal the second story. Some of you may have heard these stories, so please bear with me, and it's always purifying to hear them again. But you need to know these two stories in order to understand Jagannath Ashtakam and the mood of Jagannath Ji and the mood of Rath Yatra, because we have Rath Yatra in couple days. So to understand what exactly we are doing, what is Lord Jagannath Ji, Baldev, Subhadra doing on that Rath, you have to understand what's going on. So first of all, important understanding is who is Jagannath Ji. Okay, so Jagannath Ji, as you know, is none other than Krishna. And so you may say, okay, it's one of the forms of Krishna. Jagannath is another form of Krishna. Just like there are so many forms. There is Balaji, or there is Vitthal, there is Ranganathan. So many forms are there of Krishna, and this is one such form. So let's understand how this form came about, because this form is very unique. As you know, um, this form you can see has very big eyes. Jagannath Ji has very big eyes. There are no hands, there are no legs, you can see, and there is a smile, very big wide smile going from ear to ear like this. So it's a very unique form. So how did this form come about? Let's understand that quickly. So Jagannath Ji is Krishna, but he is, which Krishna is he? Is he Krishna in Vrindavan? Is he Krishna in Mathura? Is he Krishna in Dwarka? Is he Krishna in Kurukshetra? Which Krishna is he? So he is the Krishna in Dwarka. He's the Dwarkadhish Krishna. So once upon a time, and this is not the time from this age, it's from a different yuga. It's from Dwapar Yuga, but a different Dwapar Yuga, not the Dwapar Yuga of our time. क्योंकि एक द्वापर युग अभी पीछा गया है, इससे बहुत पहले किसी और टाइम में, किसी द्वापर युग में, we don't know when, but किसी और द्वापर युग में, किसी और डे ऑफ ब्रह्मा जी के किसी और दिन में. Once what happened was, in Dwarka, all the queens of Dwarka, you know that Krishna has 16,108 queens. All these queens of Dwarka started asking some questions from each other. They said this, they were asking, have you seen that Krishna sometimes becomes very delirious, or behaves like very whimsically, like a madman? Sometimes he's saying all these names that we don't know, and he calls out the names of Radha or Lalita or Vishakha or Arjun Sakha or Subal, Mangal. All these weird names he calls out that we don't know anything about. Sometimes he's sitting up in the night, calling these names. Sometimes he passes out. He's completely lost when you talk to him. Sometimes he's laughing. So what is this weird moods that come upon Krishna sometimes? Who can explain these things to us? So then at that time they thought, okay, let's ask, these seem to be Krishna's associates from Vrindavan. Let's ask um
let's ask somebody that was with Krishna in Vrindavan who can explain these people to us and these various moods that Krishna goes into. So they decided to ask Mother Rohini, Lord Balram's mother. Mother Rohini is Lord Balram's mother. And you know that she was there in Vrindavan. So she has firsthand seen a lot of these pastimes or has heard about these pastimes, has heard stories of these pastimes, these Vraj Leelas, whether with Gopas or Gopis, with elderly Gopis, with younger Gopis, with the cowherd men, all these, and with cows and calves, all these Leelas were widely shared and they used to be glorified and sung in the entire Vrindavan for days. So Mother Rohini is very well versed with these Leelas. So let's ask her. So they approached Mother Rohini, they surrounded her and they started asking all these questions. तो मदर रोहिणी ने बोला कि ठीक है मैं तुम्हें सब बताऊंगी लेकिन मैं ये नहीं चाहती कि कृष्ण और बलराम सुने क्यों क्योंकि अगर वो ये लीलाएं सुनेंगे तो वो बहुत सेपरेशन फील करेंगे वृंदावन से या फिर वो बहुत एक्सटेसी में चले जाएंगे क्योंकि वृंदावन से दूर रहना उनके लिए बहुत मुश्किल है तो ये लीलाएं सुनना उनके लिए मुश्किल हो सकता है या फिर बहुत कुछ कह नहीं सकते कैसा अगर याद करने से इतने भाव आ जाते हैं उनके ऊपर इतना ही goes into this type of madness behaves in this type of way so I don't know what will happen when he hears them directly so let's make sure that he does not they don't hear these leelas so she told Subhadra Mai okay Subhadra is the younger sister of Krishna and Balram she told her कि तुमने तो ये सारी लीलाएं सुनी हैं तुम दरवाजे के बाहर जाकर खड़े हो जाओ or make sure that Krishna and Balram don't enter. Okay? Guard the door while I tell all the queens about these Leelas. So that's what Subhadra Maharani did. She stood outside the door and she was guarding the door, and Mother Rohini is now reciting, narrating all these pastimes to the queens. और वो बहुत डिटेल में पूरा रस ले लेके बहुत अच्छे से पूरी ऐसे हरी कथा व्रज लीलाएं पूरे व्रज भाव में सुना रही हैं ओके कभी वात्सल्य भाव कभी माधुर्य भाव कभी साख्य भाव डिफरेंट तरह के भाव वृंदावन में जो होते हैं ऑल दीज मेलोज ऑल दीज इमोशंस शी इज कन्वेइंग टू द क्वींस अब जो सुभद्रा महारानी शी कैन नॉट हेल्प बट लिसन वो वहां पे खड़ी हैं शी इज गार्डिंग द डोर शी कांट हेल्प बट लिसन so she started listening और उनके ऊपर भी she became very immersed in these pastimes she was completely overcome by emotions herself so much so that she became completely lost in the pastimes और उन्होंने डोर का ध्यान देना बंद कर दिया at that time Krishna and Balram came running you know whenever there is hari katha going on Braj Leelas being discussed it's you know Krishna can hear the transcendental sound vibrations that's why we say that keep the transcendental sound vibrations going because any kirtan any japa any chanting any hari katha Krishna can hear so keep it going because Krishna is paying attention even if you're not paying attention your Krishna is paying attention so he came running because Harikatha is going on, Braj Leelas are being discussed. So Krishna and Balram came running. और जब वो डोर पे आए तो उन्होंने देखा सुभद्रा माई स्टैंडिंग देयर ऑल कंप्लीटली जॉयफुल अ स्माइल गोइंग ईयर टू ईयर हाँ क्योंकि वो इतना इमर्स्ड है इन दीज पास्ट टाइम्स शी इज एंजॉयिंग द मेलोज ऑफ Vraj Bhav and all these emotions and she's remembering these pastimes as they were happening completely she's transported into Vrindavan उनकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई हैं और कृष्णा और बलराम भी सुनने लगे और थोड़ी देर में देवर ऑल्सो गॉन देवर ऑल्सो लॉस्ट कंप्लीटली बिल्कुल भाव विभोर हो गए बिल्कुल गुम हो गए लीलाओं में सो और उनके साथ भी यही हुआ क्या हुआ इतनी एक्सटेसी आ गई उनके फेस पे उनकी बॉडी में that they started shivering they started trembling their hands their limbs upper limbs started going retracting into their body their lower limbs also started retracting into their body उनकी eyes ऐसे सुनते सुनते जैसे हम कोई बहुत अमेजिंग बात सुन रहे हो तो आपकी आंखें कैसे बड़ी बड़ी हो जाएंगी उनकी आंखें से बड़ी बड़ी हो गई एकदम और उनके स्माइल ऐसे ईयर टू ईयर हो गए बिल्कुल और इस भाव में वो खड़े होके लीलाएं सुन रहे थे एट दैट टाइम when they were in this mood all three of them Krishna Balram and Subhadra they were standing at the door hearing this at that time Narad Muni came to pay them darshan you know Narad Muni often used to visit Dwarka and he would you know he cannot stay away from Krishna so he would keep visiting Krishna in Dwarka and would you know take instructions or ask for well-being and all these things so he saw these three people standing at the door in this very very unique form completely lost and he heard Rohini mother Rohini is reciting the pastimes Braj Leelas inside
जैसे ही उन्होंने नारद मुनि ने ये रूप देखा कृष्णा बलदेव और सुभद्रा का, immediately he paid obeisances and started singing, offering stutis and prayers and glorifying them. Oh, ये मैंने क्या देख लिया, and he's glorifying their beauty, how beautiful they look, how amazing, wonderful, what is this roop, what is this is amazing. And that broke the ecstasy, जैसे वो लीन थे पूरा, कृष्णा बलराम और सुभद्रा पूरा लीन थे, तो they came out of that samadhi that they had gone into, and they came into their the present time and saw Narad Muni paying dandavats to them and offering them stutis and prayers. So उनकी वो भंग हो गई, जो ecstasy थी. So and they came to their original form. तो नारद मुनि ने कहा, भगवान ये क्या रूप था आपका, ये आप कैसे ऐसे क्यों दिख रहे थे इतने डिफरेंट? That was very wonderful form. I've never seen this form. Which form is this? Can I have other devotees also see this form? Can you show this to others? Because looks like you were in complete ecstasy. You were smiling ear to ear. Your eyes were wide open. Huh? This form everyone should be able to relish. तब कृष्णा ने नारद को बोला कि अभी आप ये अपने तक ही रखो ये बात, लेकिन at some point of time, in some other day of Brahma ji, some other time, I will come, I will manifest this form to the entire world. I will show this form to everyone, to all of my devotees and not devotees, non-devotees, सारे लोगों को ये form दिखेगी, and this will be my most merciful form. In this form, I will appear. And he said, I will appear in the नीलाचल धाम. तो नीलाचल पुरी या नीलाचल धाम एक जगह है जहां पर which is like a blue mountain. नील अचल, अचल मतलब something that does not move, like a mountain does not move. नील अचल, नीलाचल धाम या इसको नीलाद्री धाम भी बोलते हैं. नील आद्री मीन्स ब्लू माउंटेन. ब्लू सेफायर माउंटेन पे पहले नील माधव डीटीज होते थे. जब वो नील माधव डीटीज चले जाएंगे, डिसअपियर हो जाएंगे, तब मैं उस नीलाचल धाम में आके रहूंगा और उसको बोला जाएगा जगन्नाथपुरी धाम. तो ये उस नीलाचल या नीलाद्री धाम या जगन्नाथपुरी धाम या इसको शंख क्षेत्र भी बोलते हैं, बिकॉज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन दैट दिस जगन्नाथपुरी धाम इज शेप्ड लाइक अ शंख. It's shaped like a conch shell. So this is where I will come after the Neel Madhav deities disappear. Jagan and all three of us will come. Me, my brother, and my sister. All three of us will come, and this will be my most merciful form. So this is the story of how Jagannath, Baldev, Subhadra came in this very unique form to Jagannath Puri. Okay. There are many stories. I am not going to tell you all the stories. But I'm going to tell you just one more story because that story is the key to the Rath Yatra. Okay. Is everyone with me so far? Who has heard this story before? Let me see who's listening. Yes, Mataji. ये You सुना heard. है. Yes. हमने 2 साल पहले भी डिस्कस किया था. 2022 में we actually did many stories of Jagannath ji. Yes, Last Mataji. year also we did it, Mataji. Yeah, last year also we did, I think. Yes, you're right. Yes. Okay. Okay. Yes, So we heard it then. Hari bol. So for those who this story was new, please keep this in mind, in the back of your mind before we go into the Ashtakam. Now let's go to another beautiful story, okay? And then तो मैं उस story का आपको बताती हूँ. So once upon a time, now we will come to our Dwapar Yug, जो अभी पीछे Dwapar Yug गया है, okay? ये भी आपने शायद सुनी होगी story, but bear with me and please listen. In that Dwapar Yug, okay? So last Dwapar Yug की बात करें, when Krishna came, okay? Krishna comes only once a day in the day of Brahmaji. He comes once a day, okay? So in this day of Brahmaji, he came in the last Dwapar Yug. So what happened was, you know that Krishna was in Vrindavan and Krishna was doing all these wonderful leelas. He was doing beautiful leelas with gopis, gopas, elderly gopis, with cows, with calves, all this asur sanghar, right? Killing all these demons, slaying all these demons, Putana, Sanhar, ya fir Kaliya Daman,
ये सब बहुत सारी लीलाएं की कृष्णा ने, दामोदर लीला, गोवर्धन लीला, बहुत सारी लीला. So and Krishna was the beloved, darling child of Vrindavan. Everybody's life and soul, heart and soul, they kept Krishna in center. Everything that they did was done for Krishna, keeping him in their heart and mind. So then one day Krishna left. Okay, Krishna left. And when he left, um, everybody was heartbroken. Gopis tried to stop Akrura from taking Krishna and Balram. Everybody was heartbroken. And Krishna never came back. So in this way, Krishna was now ruling Mathura and then Dwarka, ruling as in he was ruling under the king. He was Dwarkadhish. And then Battle of Kurukshetra also happened. He was visiting Hastinapur. He had become a very wonderful ruler, and basically from his Vaishya aspect, like because he was based before Vrindavan Chandra or Rajendra Nandan, so he was belonging to Vaishya community or mercantile community. Now he has taken up the role of like a Kshatriya, a king. So many years passed in this way. About 100 years passed. And then one day came the day of solar eclipse. Okay, it was Surya Grahan ka din. And it was a ritual for Brajvasis, for Vrindavan Vasis, and it is still a ritual till date that in Kurukshetra, when there is solar eclipse, people from all over the country come to the Brahma Sarovar, to Kurukshetra. People come on the day of solar eclipse. Many other days when people come, but that is eclipse is especially a day when people come to take bath. And Kurukshetra is very pavan bhumi, very auspicious land for that reason. So when this day of solar eclipse came, Brajvasis heard that Krishna is also coming to Kurukshetra, and Brajvasis anyways had this ritual of going to Kurukshetra for eclipse. So they decided, okay, let's go. Let's all go because we will finally get darshan of Kurukshetra. Okay, darshan of Krishna. We'll get darshan of Krishna. So जब वो वहां पर पहुंचे, अब 100 साल निकल चुके हैं, ये सब लोग पहुंच गए, सब लोग, नंद महाराज, यशोदा मैया, राधा रानी, गोपीज, गोपास, everybody is there, and they are all looking at Krishna, but they were expecting that वही कृष्णा होंगे जिनके सर पे पीकॉक फेदर होता है, जिनके सर पे सॉरी जिनके आगे पीछे काउज एंड काव्स रहती हैं, जिनके हाथ में लेफ्ट हैंड में मुरली होती है, और जब देखा लेकिन वहां पर तो क्या देखा कि not only there was no peacock feather, there is no murli, there is no flute in his left hand, rather he has like swords and weapons. There is no cows and calves. He's surrounded by like horses and elephants, and there are these big chariots on which he has come, and there are these soldiers that are surrounding him instead of like gopas, and he's wearing this mukut, जैसे मुकुट डाला हुआ है, और वैजंती माला जो फॉरेस्ट फ्लावर्स की बनी हुई माला होती थी वो डालने की बजाय अब ज्वेलरी डली हुई है बहुत सारी, हाँ, तरह तरह के जूल्स की माला है rather than that वैजंती माला. So he looks very different. He looks like a king now. He looks like a proper, very big, majestic royal king with lot of opulence. Very Aishwarya hai unke. There is so much opulence about him. So when they looked at him, they did not feel the same. This is not our Krishna. So then when this form of Krishna they saw, this Dwarkadish form of Krishna they saw, what did they say? What did Radharani say? Radharani said this. Okay, the verse is on the screen. I won't recite the verse. It's a long verse. But she said that, basically she said that I am the same Radharani, you are the same Krishna, yet it does not feel right. It does not feel the same. I wish I could put you on a cart and take you back to Vrindavan. Okay, I wish I could take you back to Vrindavan where we could be same as we were before, on the tat of Yamuna, on the shores of Yamuna, like we used to sit, we used to
how you used to look, how we used to exchange, reciprocations and affections. I wish we could be like that again. I wish I could take you with me, take you back to Vrindavan with me, so that we could be same again. So this is what she said. That very personality who stole away my heart during my youth is now again my master. These are the same moonlight nights of month of Chaitra. The same fragrance of Malti flowers is there, and the same sweet breezes are blowing from the Kadamba forest. In our intimate relationship, I'm also the same lover. Yet still my mind is not happy here. I'm eager to get back to that place on the bank of Reva under the Vetasi tree. This is my desire. Then she says, my dear friend, now I have met my very old and dear friend Krishna on this field of Kurukshetra. I am the same Radharani, and now we are meeting together. It is very pleasant, but still I would like to go to the bank of Yamuna beneath the trees of the forest there. I wish to hear the vibration of his sweet flute playing the fifth note within that forest of Vrindavan. So she's thinking, and other gopis are also thinking. And these verses, there are like 50 plus verses that are describing this mood. I've just taken the two main ones, but they are just longing to take Krishna back to Vrindavan, where they could exchange the same type of mood, same type of affections, reciprocations, and same appearance that Krishna had before. Not this royal, majestic, opulent Krishna, but that simple cowherd boy, the Braj Gopa, the one surrounded by by cows and gopas and calves, and playing his flute, and wearing this yellow belt, and wearing this more mukut. That's the Krishna that we want, not this Krishna who's surrounded by soldiers and elephants and horses and whatnot. So you can see Krishna, Dwarkadish Krishna, and all the gopis. This is what they're thinking. Radharani, this is what she's saying. So that is where the longing comes in the mind of Radharani and gopis, that wish we could put Krishna on this cart, these carts that we have brought, and drag him back, take him back to Vrindavan. So that is the mood of Rath Yatra. Okay, that is the underlying. And then Krishna also says many verses. Krishna says many verses how he's feeling separation from them, how he wishes he could go back with them to Vrindavan, how he wants to go back to Vrindavan, how every night he goes to Vrindavan. He describes many things, many exchanges. He says, you think that I was ever separated from you? Every time you thought you saw me, every time you thought you heard my flute, actually, it was really me there. I was there. It was not an illusion. You were not imagining it. I was always there. Um, so I was never separated from you for a minute. So he says many things. But basically, this is the mood of Rath Yatra, where devotees want to put Krishna on the cart and take him back to Vrindavan, where they can be with him, where they can exchange loving, madhurya bhav, the sweetness with him, because Vrindavan is the abode of sweetness, whereas Dwarka is the abode of majesty and Ashwarya. So this is Krishna, Dwarkadish, who is in intense separation from Rajvasis, and he wants to go back to Vrindavan, and devotees want to take him back to Vrindavan. So the Rath Yatra is basically the journey between Dwarka, or you can say Kurukshetra, to Vrindavan. So the Shri Mandir, the Jagannath Mandir, from where the Rath Yatra begins and ends at Gundicha temple, it represents the journey of Krishna, Dwarkadish Krishna, in a mood of intense separation from Dwarka or from Kurukshetra to Vrindavan. So Sri Mandir represents the Dwarka Dham, where Jagannath Ji or Krishna is in a very opulent manner. He's being served by such wonderful priests and demigods, and so many people come for his darshan, and he's getting opulent bhoga all day. So this is his opulence in Dwarka. This is Sri Mandir is the Dwarka. And then he gets on the Rath and wants devotees to drag him back to Gundicha. And Gundicha Mandir represents the Vrindavan. Okay, Vrindavan Dham. So devotees are dragging Krishna back to Vrindavan, basically back to the abode where they can be free with him, where they can play with him, where they can tease him, where they can have all these naughty, endearing, wonderful, beautiful, sweet pastimes with him.
So that's what devotees are doing. So when you put Jagannath ji on the cart, you are taking him back to Vrindavan. Okay, you're taking him back to the Vrindavan of your heart. So that is the mood of Rath Yatra. So who is Jagannath ji? Jagannath ji is not just Krishna. Jagannath ji is Krishna as Dwarkadhish in the mood of intense separation from ब्रजवासीज. वो खड़े हैं वहां पे, सेवा ले रहे हैं जगन्नाथ जी. इतने पांडा लोग, इतने प्रीस्ट लोग, इतने देवी देवता, कितने लोग उनकी पूजा करते हैं, पर वो वहां पे खड़े हैं, वेट कर रहे हैं कि मैं कब वृंदावन जाऊंगा. So that is the mood of Rath Yatra. There are other intentions, external motives for Rath Yatra. For anything Lord does, there are external reasons and internal reasons. This what you heard is the internal reason of the Rath Yatra, the confidential reason of Rath Yatra. तो अब इसको हम शुरू करते हैं जगन्नाथ जी के जगन्नाथ अष्टकम को. So you have to understand, जगन्नाथ पुरी में सारे मूड दिखते हैं. Okay, Jagannath Puri is famous for opulence, as I mentioned, that there are so many people worshipping, so much bhoga being prepared. He is the Raja there. Not everybody is allowed entry into the temple, right? Temple mein entry is restricted to certain people only. So he's the Raja there. He's the Dwarkadhish there. He's the majestic king there. तो एक तो opulence, ऐश्वर्य भाव है जगन्नाथ पुरी में. दूसरा वहां पर so every dham has a certain prominent mood. Like Dwarka mein mood is opulent mood, Aishwarya Bhav. Vrindavan mein the most prominent mood is, what mood is most prominent in Vrindavan? Who will tell? Madhurya. Madhurya Bhav, sweetness. So Madhurya Bhav is most prominent in Vrindavan. What mood is prominent in Mayapur Dham? Audarya Bhav. Audarya Bhav. So the mood of compassion, mercy, Audarya Bhav. लेकिन जगन्नाथ पुरी में तीनों मूड मिलते हैं. सो यू अंडरस्टैंड द ऐश्वर्य भाव कैसे है. माधुर्य भाव आपको समझ में आ गया. और औदार्य या मर्सीफुल मूड कैसे है, तो उसके वी विल डिस्कस दिस. बट देयर आर many aspects of mercy in Jagannath Puri. One is through Lord Jagannath Ji's prashadam. कि प्रसाद 24 hours बनता है और मिलता है, freely मिलता है, उसमें कोई restriction नहीं होती. It is available to any caste, creed, religion, everybody. And then जो रथ यात्रा का external motive है, where he gets on the rath, is like a king getting out to give darshan to his praja, people that are not allowed entry into his palace, the Shri Mandir. So then Bhagwan comes out to give darshan to those people, the people that are चाहे वो मांस खाते हों, अल्कोहल पीते हों, चाहे वो कितने भी कुछ भी फॉलन उनकी कंडीशन हो, किसी भी वजह से, या वो आना ही नहीं चाहते मंदिर में, एथिस्ट हैं, एग्नोस्टिक्स हैं, everybody can get darshan of Jagannath Ji when he gets out on the rath. So that's his merciful mood. So that's an external reason to get out on the rath, is to give darshan to people that cannot come or will not come to the temple. And then other aspect of mercy is he does not sleep. He stands there with his eyes open all day, all night. तो जगन्नाथ पुरी में दर्शन कभी बंद नहीं होते. जगन्नाथ पुरी में सिर्फ 2 घंटे रात को दर्शन बंद होते हैं. उन 2 घंटे में भी भगवान किनको रिसीव करते हैं? देवी देवताओं के लिए. सो देवी देवता आते हैं. सो इन जगन्नाथ पुरी देयर इज अ प्लेस कॉल्ड स्वर्ग द्वार, जहाँ पे सभी देवी देवता अपना चैरियट उतारते हैं और फिर दर्शन करने आते हैं जगन्नाथ जी के. सो ही डज नॉट स्लीप एंड अपनी आंखें बड़ी करके खड़े रहते हैं, क्योंकि यू नो व्हेन वी ट्राई टू गेट दर्शन ऑफ जगन्नाथ जी, वी गेट ओनली लाइक अ लिटिल ग्लिम्प्स, बहुत ही क्विक ग्लिम्प्स मिलता है. लेकिन जगन्नाथ जी आपको मिस नहीं करते. आपसे उनके दर्शन हो सकता है मिस हो जाए, लेकिन जगन्नाथ जी हैज सीन यू. सो ही सीज यू इवन इफ यू हैव नॉट सीन हिम, एंड इट इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर हिम टू सी अस देन फॉर अस टू सी हिम. सो दैट्स द औदार्य भाव. तो ये तीनों मूड्स दिखते हैं जगन्नाथपुरी में. लेकिन जो इंटरनल मूड है, जो सिर्फ और सिर्फ डिवोटीज को पता है, दैट आई वांटेड टू शेयर विद यू टुडे, इज द विप्रलंबा भाव, द मूड ऑफ सेपरेशन फ्रॉम डिवोटीज. कि खड़े हैं राजा बनके, लेकिन अंदर से अपने डिवोटीज के लिए, अपनी गोपीज के लिए, अपने व्रजवासीज के लिए बहुत ही इंटेंस लॉन्गिंग है टू गो बैक टू देम. So that's the Vipralam Bhav. So mood of separation is very prominent in Jagannath Puri. तो अब हम ये शुरू करते हैं.
this verse is saying what happens when you see the Lord on chariot. अगर कोई देख भी ले, तो इसलिए when we do our Rath Yatra in couple days, we have to make sure that we take it out in the populated areas जहाँ पे लोग हैं, because रथे च वमनम दृष्ट्वा पुनर्जन्म जन्मान विद्यते. जिसने देख भी लिया भगवान को चैरियट पे, उसका पुनर्जन्म नहीं होगा. Simply by seeing the Lord on the chariot, one makes advancement for stopping the repetition of birth and death. आप सोचो आप कितनी बड़ी सेवा करने निकले हो. आप भगवान को खींच रहे हो, yes, to take him into your heart, to bring him into your heart, but you are giving his darshan to people that do not have access to him, that do not know about him even. So, और उनका repetition of birth and death you can stop. Then it says, what happens? Anyone who sees the deities of Lord Jagannath, Baldev and Subhadra during their Rath Yatra procession will be quickly rid of his miseries and is bound to reach Vaikuntha Lok, the eternal spiritual world where anxiety does not exist. Pratimam tatra tam drishtva swayam devena nirmitam anayasena vai yanti bhavanam me tato naro. That all these people who see these three deities on the cart, on the chariot, will not take birth in this material world and will be rid of their miseries. They will reach Vaikuntha Lok. So this is such a, and then there are many verses that mention about what happens when you pull the rope, when you even touch the rope. तो जगन्नाथ जी की कार्ट की अगर रोप को आपने टच भी कर लिया या पुल किया तो कितना बेनिफिट मिलता है. और अगर उनको देख लिया रथ पे और उनके रथ के आगे झाड़ू लगा दिया या कोई स्तुति गा दी, प्रेयर्स गा दी, सो कितना फायदा मिलता है. सो ईच ऑफ दीज थिंग्स हैव बीन डिस्क्राइब्ड इन द स्क्रिप्चर्स, बट without further ado, let's get into the Jagannath Ashtakam. I had to build this up because this is important to understand the mood of Lord Jagannath. नहीं तो आपको ये अष्टकम समझ नहीं आएगा कि ये सब क्या बोल रहे हैं. So, Poonam Mataji, would you like to sing this and then we'll take it? ओके माताजी. आप पूरा गा दीजिए एक बार में. पूरा? ये मतलब ये पूरा 4 लाइनें. अच्छा. कदाचित् कालिन्दी तटविपिन संगीत तरलो मुदाभिरिनारी वदन कमला स्वाद मधुपा रमा शंभु ब्रह्मा मरपति गणेश चितपादो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे. Very bold. Thank you, Mataji. So the first 2 verses are talking about Vrindavan Chandra Krishna. Okay, Krishna in Vrindavan. The first 2 verses are talking about Madhurya Bhav. Like I told you, all 3 moods you will see in Jagannath Ashtakam. तो जगन्नाथ पुरी में तीनों moods दिखते हैं, जगन्नाथ अष्टकम में भी आपको तीनों moods दिखेंगे. तो सबसे पहला है माधुर्य भाव, जो पहली 2 verses में आता है. This is discussing the Vrindavan Chandra, the Shyam Sundar, the Gopi Jan Vallabh, the Gopi Prandhan Krishna. Okay. कदाचित कालिंदी, sometimes. कालिंदी क्या होती है? What is कालिंदी? Who will tell? यमुना मैया. यमुना मैया, कालिंदी तटा. Sometimes at the banks of Yamuna, विपिन, विपिन क्या होता है? Groves of वृंदावन, वृंदावन के जो फॉरेस्ट हैं या ग्रोव्स हैं वृंदावन के, वहां पे कालिंदी के तट पे, ग्रोव्स ऑफ वृंदावन में कभी कभी क्या होता है कि कृष्णा बैठ के संगीत करावो, संगीत प्ले करते हैं. क्या संगीत प्ले करते हैं? कृष्णा तो फ्लूट ही प्ले करते हैं. तो यू कैन सी वेरी क्लियरली दैट दिस जगन्नाथ अष्टकम इज टॉकिंग अबाउट कृष्णा इन वृंदावन, कि कभी वो कालिंदी के तट पे एट द बैंक्स ऑफ यमुना ही सिट्स इन द ग्रोव्स ऑफ वृंदावन एंड प्लेज हिज फ्लूट. ओके. Muda Bhiri Nari. Abhiri Nari refers to gopis of Vrindavan. Muda means he gives great pleasure to the gopis or of Vrindavan, and specifically, अब ये multiple gopis को भी refer कर सकता है. Nari could refer to gopis or it could refer to Radha Rani. So it has been described both ways. So he gives pleasure to the gopis of Vrindavan, and then what happens when they hear his flute? Okay, which अभी हमने पढ़ा था. Let's see who's paying attention. कृष्णा के फ्लूट का कौन सा नोट प्ले करने से गोपीज आती हैं? कृष्णा हैज अ स्पेसिफिक नोट फॉर ईच. Fifth note. Fifth note. हरी बोल. हरी, I can't imagine everybody was listening. So yes, 5th note play करने से गोपीज आती हैं. So gopis of Vrindavan
और 8th नोट प्ले करने से राधा रानी आती हैं, ठीक है। 8th नोट राधा रानी के लिए होता है। So when Krishna plays his flute, it gives pleasure to gopis, and what happens? They come running, and then what he does? Vadan मतलब उनका face, कमल उनका लोटस फेस, आस्वाद टेस्ट मतलब लुक देखना, मतलब टेस्ट मतलब ऐसे नहीं कि भाई टेस्ट मतलब ही इज टेस्टिंग, मतलब ही इज लुकिंग, ही इज बिहोल्डिंग द लोटस फेस ऑफ दीज ब्यूटिफुल गोपीज हु कम रनिंग एट हिज फ्लूट। मधुपा लाइक अ हनी बी और लाइक अ बम्बल बी, जैसे कि एक भंवरा होता है वो फूल के ऊपर मंडराता है, इसी तरीके से ये कृष्णा जब गोपीज आती हैं तो उनके लोटस लाइक फेसेस जो खिल गए हैं, मुदा मतलब बिल्कुल प्लेजर ब्लिस में खिल गए हैं एट हियरिंग द फ्लूट ऑफ कृष्णा, उनके फेस पे भंवरे की तरह उनको निहारते हैं, उनको देखते हैं। और ये ऐसा नहीं कि कोई ऐसा कोई ऑर्डिनरी बॉय है, ठीक है। यू कैन से ओ दिस इज लाइक सम प्ले बॉय, सम लाइक लंपट टाइप ऑफ बॉय, हाँ, नो, दिस इज द पर्सन जिसकी रमा, शंभु, ब्रह्मा, अमरापति एंड गणेशा अर्चिता पदो, जिसके पैरों की अर्चना करते हैं। ही इज द वर्शिपफुल लॉर्ड ऑफ, यहाँ पे 5 देवताओं के नाम दिए गए हैं। रमा कौन है? कौन बताएगा रमा कौन हुई? लक्ष्मी जी। रमा इज लक्ष्मी जी। शंभु लॉर्ड शिवा। ब्रह्मा इज ब्रह्मा जी। अमरापति कौन हुए? अमरापति इंद्रा एंड देन गणेशा। तो जिनके पैरों की अर्चना, ही इज द वर्शिपेबल लॉर्ड ऑफ दीज डेमीगॉड्स। कौन? नहीं ऐसे छोटे मोटे नहीं, लक्ष्मी, शिवा, ब्रह्मा, इंद्रा, गणेशा, जिनके पैरों की अर्चना करते हैं। ये हम उस कृष्णा की बात कर रहे हैं कि वो जब कालिंदी के तट पे बैठकर ग्रोव्स ऑफ वृंदावन में फ्लूट प्ले करते हैं और गोपीज भाग के आती हैं और वो उन गोपीज के चेहरे का कमल जैसे लोटस लाइक फ्लावर का आस्वादन करते हैं, लाइक अ हनी बी। वो कृष्णा जब जगन्नाथ फॉर्म में आते हैं, ठीक है, वो जगन्नाथ जी का मैं चाहता हूं कि may that Jagannath Swami be the object of my vision. So this line is repeated in each verse of Jagannath Ashtakam. Jagannath Swami Nayan Pathgami. Nayan Pathgami. Jagannath Swami तो हो गए लॉर्ड जगन्नाथ। नयन पथगामी, मेरे नयनों के पथ मतलब मेरे विजन में रहें, भवतु में ऐसा हो जाए कि मुझे जगन्नाथ जी दिखाई दे। मे ही बी द ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे दिखाई देने का मतलब ऐसा नहीं कि हमें सब जगह से दिखाई देंगे, कहने का मतलब है मे आई नेवर लूज साइट ऑफ जगन्नाथ जी, मे आई ऑलवेज कीप हिम इन सेंटर, मे आई ऑलवेज वर्क फॉर हिम, थिंक अबाउट हिम, कीप हिम इन माई रिमेम्बरेंस, दैट जगन्नाथ। ऐसा नहीं कि वो हमको ऐसे दिखाई देंगे हर जगह, वो ये नहीं कह रहे हैं, पर दिखाई देने का मतलब है कि हर जगह मैं उनको अप्रिशिएट कर सकूं, उनकी प्रेजेंस को, उनके प्लान्स को, उनकी रियलाइजेशंस को, उनके साथ कनेक्टेड रह सकूं। सो मे दैट जगन्नाथ स्वामी बी द ऑब्जेक्ट ऑफ माय विजन। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी, मेरे पथ के, मेरे नयन जहां जाते हैं वहां पे मुझे, जिस पथ पे जाते हैं मेरे नयन, उस पथ पे मुझे जगन्नाथ स्वामी दिखाई दे, ऐसा हो जाए। और ये जगन्नाथ कौन है? ये वो कृष्णा है जो यमुना के तट पे बैठकर ऐसे फ्लूट प्ले कर रहे हैं और गोपीज को निहार रहे हैं, और जिनकी पूजा ये डेमीगॉड्स करते हैं। सो ये डेमीगॉड्स का नाम बीच में इसलिए दिया गया है टू टेल यू दैट दिस इज नॉट एन ऑर्डिनरी पर्सनालिटी वी आर टॉकिंग अबाउट, वी आर टॉकिंग अबाउट somebody very great, somebody very wonderful. फिर अगला करते हैं, माता जी गाएंगे। यस माता जी। भुजे सव्य वेणुं शेरसि सेकी पिच्छं कटितटे, दुकूलं नेत्रान्ते सहचर कटाक्षं विदधाते, सदा श्रीमद्वृन्दावन वसति लीला परिचयो, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। हरि बोल। ओके, भुजे सव्य वेणु। अच्छा, कृष्णा के कौन से हाथ में फ्लूट होती है? कौन बताएगा?
मेन ऐसे डिस्क्राइब क्या बोलते हैं, किस हाथ में फ्लूट होती है? लेफ्ट। लेफ्ट हैंड में. सो भुजे सव्य वेणु. आपको इफ यू रिमेम्बर फ्रॉम भगवत गीता, कृष्णा कॉल्स अर्जुन सव्य साची. इन चैप्टर 11 ही सेज निमित्त मात्र भव सव्य साची. ओ अर्जुन बिकम माय इंस्ट्रूमेंट ओनली. राइट, निमित्त मात्र भव, सव्य साची बोलते हैं, वो अर्जुन का एक नाम है सव्य साची. सव्य साची का मतलब जो लेफ्ट और राइट हैंड दोनों हाथों से वेपन्स यूज कर सकता था, जो एम्बीडेक्स्ट्रस था. सो ही कुड फाइट विद ईदर hand or either arm he could use in the war to fight. So he can wield bow and arrow with either side, either arm. So left hand में जो flute hold करते हैं, भुजे सव्य. सव्य means left hand. In the भुजा हो गई arm या hand. वेणुम मतलब flute. So he holds flute in his left hand. शिरसी, उनके सर पे. शिखी पुच्छम. पुच्छम या पिच्छम बोलते हैं, या पूछ कह सकते हो. किसकी टेल का फेदर रहता है उनके सर पे? उनके सर पे पीकॉक, मोर पंख रहता है. शिरसी, जिसके सर पे. तो अब कृष्णा की ब्यूटीफुल फॉर्म इज बीइंग डिस्क्राइब. जिसके लेफ्ट हैंड में वेणु है, जिसके सर पे शिखी इज मोर. शिखी इज मोर और पीकॉक. पुच्छम, पुच्छम या पिच्छम मतलब जिसके पीछे का टेल का फेदर जिसके सर पे रहता है. ओके. कटी तटे दुकूलम. कटी होता है वेस्ट. जिसके वेस्ट पे, कटी तटे होता है वेस्ट, जिसकी वेस्ट पे दुकूलम है. दुकूलम मतलब बेल्ट, लाइक अ येलो क्लॉथ, जिसमें कृष्ण अपनी फ्लूट रखते हैं. जब वो प्ले नहीं कर रहे होते, देन ही स्टोर्स हिज फ्लूट इन दैट येलो बेल्ट और येलो क्लॉथ. पीतांबर डालते हैं ना हमेशा. सो येलो कलर की उनकी बेल्ट होती है, या गोल्डन कलर की बेल्ट होती है. कटी तटे दुकूलम, तो जिनके ये येलो सिल्कन क्लॉथ है वेस्ट पे. ओके. सो ये उनकी फॉर्म डिस्क्राइब की गई है. ये बहुत ही प्यारी बात है कि जो पीकॉक होता है, इसके बारे में ऐसा बोलते हैं कि जो जब वो कृष्णा को, अच्छा पीकॉक कब डांस करता है? आपने कभी देखा? जैसे जनरल पीकॉक होते हैं, आपने इधर उधर देखा होगा. वो कब डांस करते हैं? पूरा अपना ऐसे फैला के अपना पंख पूरी. माताजी मोस्टली रेनी वेदर में. रेनी वेदर में पूरा अपना डिस्प्ले पे वो खोलते हैं. क्यों रेनी वेदर में? व्हेन दे सी द ब्लैक क्लाउड्स, द रेन फिल्ड क्लाउड्स, द मॉनसून क्लाउड्स, व्हेन दे एक्सपेक्ट द रेन, देन दे ओपन देयर, पूरा ऐसे खोलते हैं अपने पंख, है ना, पूरा डिस्प्ले करते हैं देयर प्लूमेज. सो जब कृष्णा जो है वो क्या है? वो घनश्याम है, वो मेघश्याम है. हिज कलर इज लाइक अ फ्रेशली फॉर्म्ड मॉनसून क्लाउड. His blackish bluish color to them looks like a cloud is coming. So when Krishna is coming, it looks like, oh, it's about to rain. And the mercy of Krishna is about to pour, and it pours when Krishna starts playing his flute. तो कृष्णा आते हैं, उनको दिखता लगता है कि कोई बादल आ रहा है, और फिर वो फ्लूट प्ले करते हैं, तो ऐसा लगता है कि जैसे दया की, संगीत की, ब्लिस की बारिश हो रही है. सो द पीकॉक स्टार्ट्स डांसिंग. सारे मोर नाचने लगते हैं. और जब भी कोई जब वो नाचते हैं, उसके बाद जब वो अपनी परफॉर्मेंस फिनिश करते हैं मोर, सो व्हाट डू? they leave a feather. Each more will leave a feather for Krishna as an offering. Ki thank you for playing this wonderful, beautiful song and showering us with this bliss and this beautiful music. And because Krishna के बारे में ऐसे बोलते हैं, कृष्णा अपने अधर की सुधा, अपने होठों का नेक्टर, अपने लिप्स का नेक्टर डाल देते हैं फ्लूट में, और वो फ्लूट में से नेक्टर पूरा संगीत की तरह बाहर निकलता है. उस पे वो मोर डांस करते हैं, और वो मोर का जब डांस खत्म होता है, तो वो एक ऑफरिंग की तरह, कृष्णा के लिए ऑफरिंग की तरह एक अपना पीकॉक फेदर छोड़ देते हैं. तो इसलिए हमें भी हर चीज में अपनी ऑफरिंग देनी चाहिए, हमेशा ऑफरिंग देनी चाहिए भगवान को. तो मोर भी ऑफरिंग करते हैं, तो वो कृष्णा पिक करके फिर अपने उसका मोर मुकुट बनाते हैं, उसको अपने सर पे लगाते हैं. सो शिरसी सिखी पुच्छम. ओके, ये है. ओके, देन कटी तटे दुकूलम हो गया, येलो बेल्ट. अब ये भी बहुत सुंदर बात है. नेत्रांते, नेत्रांते, नेत्र अंते, एट द एंड ऑफ हिज आईज, लाइक from his eyes he sees sahachara, his companions. Who are his companions? His gopas, his gopis, his cows, his calves. They're his companions. So he sees them at the, like a glance देते हैं, मतलब अपने ऐसे देखते हैं उनको अपने आंखों से, अपनी आंखों के साइड लॉग ग्लांस देते हैं. उसको बोलते हैं कृष्णा कटाक्ष. जैसे आपने सुना होगा राधा कृपा कटाक्ष, कृष्णा कृपा कटाक्ष. So when
Lord glances. Lord has no time for non-devotees or other people that are busy in their own world. He does not look at them. He's looking, he gives his merciful sidelong glance to his sahachara, to his loving devotees. Okay, vidadhate. Vidadhate matlab to give. He gives his sidelong merciful glance to his, from the end of his eyes to his sahachara. Okay, उनको देते हैं. तो इसके बारे में कहते हैं कि कृष्णा अपने डिवोटीज को अपनी नजर में रखते हैं, उन पे पूरी नजर रखते हैं. नजर का मतलब ऐसे नहीं कि कोई टीचर की तरह, बट नजर रखते हैं कि कुछ इसका मैं पूरा ध्यान रखता हूँ. ओके, पूरा उसका ध्यान रखते हैं. और डिवोटीज भी कृष्णा को अपनी नजर में रखते हैं. इसलिए तो हम बार बार बोल रहे हैं कि नयन पथगामी, कि आप मेरी नजरों में रहो. कृष्णा भी अपनी नजरों में रखते हैं और डिवोटीज भी अपनी नजरों में रखते हैं कृष्णा को. तो कृष्णा बोलते भी है ना कि जो मुझे सब जगह देखता है, मैं भी उसको सब जगह देखता हूँ. यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम चा मयि पश्यति तस्याहम ना प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति. वो हमेशा मेरे साथ रहता है और उसका कभी फॉल डाउन नहीं हो सकता, क्योंकि मैं उसको अपने नजरों में रखता हूँ, जो मुझे अपनी नजरों में रखता है. सो दीज devotees, he is keeping them in his eyes, okay, in his, at the end of his sidelong glance. Then it says सदा सदा श्रीमद वृंदावन वसती लीला परिचयो. तो ये तो आपको बात सबको पता है कि ही ऑलवेज रिजाइड्स इन वृंदावन. ये कृष्णा जिनके हाथ, लेफ्ट हैंड में फ्लूट है, सर पे मोर पंख है, वेस्ट येलो बेल्ट है, वेस्ट पे येलो बेल्ट है, और जो अपने डिवोटीज को, अपने सहचरा, अपने साथ चलने वाले डिवोटीज को अपनी साइडलॉन्ग ग्लांस देते हैं, वो कृष्णा हमेशा वृंदावन में रहते हैं. सदा श्रीमद वृंदावन वसती. ओके, so it is said many times that Krishna says वृंदावन परित्यज्य पदम एकम न गच्छति पश्यामि यद यदा यदा ब्रज भवम न विस्मरामि. कि मैं कहीं भी जाऊं लेकिन मैं ब्रज भूमि को अपने से दूर नहीं रख सकता, वहां से छोड़ के मैं कभी नहीं जाता. Even Srimad Bhagavatam says in the first verse, धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि. So I always reside in my dham. So इसके बहुत सारे वर्सेस हैं इसके बारे में. जैसे एक ये वर्स है जो मुझे मिली थी, वेयर कृष्णा सेज वृंदावन परित्यज्य नैवम गच्छ. ये थोड़ी डिफरेंट वर्स है. वृंदावनम परित्यज्य नैव गच्छामि अहम क्वचित निवसाम्य अन्य सार्ध महत्मयनम सर्वदा. वृंदावन धाम को छोड़कर मैं कभी भी कहीं नहीं जाता, यहाँ ही श्री राधा के संग नित्य निवास करता हूँ. सो सदा श्रीमद वृंदावन वसती. अब इसमें एक वर्ड आया है लीला परिचयो. लीला परिचयो बहुत सिग्निफिकेंट है हमारे लिए. अब हम कहते हैं कृष्णा इज ऑलवेज डूइंग हिज लीलास इन वृंदावन, है ना, गोलोक वृंदावन में, इन हिज इटर्नल अबोड ही इज डूइंग दीज इनफिनाइट अनलिमिटेड लीलास एंड डिलाइटिंग हिज डिवोटीज. लेकिन हमें वो लीला से परिचित कैसे होंगे हम? हाउ वुड वी बिकम, how would those leelas be revealed to us? So Krishna will have to come here, right? So Krishna comes to this Bhaum Vrindavan. So he comes and shows, manifests, reveals some of these leelas. Not all his leelas, but some of the leelas are being revealed to us. Leela Parichayo. So in this way he gives us the Parichay, ya fir he shows us, he gives us the taste of some of these leelas by परफॉर्मिंग देम इन वृंदावन. ठीक है. सो सदा हमेशा वृंदावन में रहते हैं और अपनी लीला का परिचय देते हैं, अपनी लीला दिखाते हैं. थ्रू हिज पास्ट टाइम्स ही रिवील्स हिमसेल्फ. सो वृंदावन के बारे में ये पहले दो वर्सेस जो हैं, दे आर अबाउट वृंदावन. दिस इज अबाउट द abode of sweetness where Krishna is most complete. He displays all type of bhavs. He displays vatsalya bhav, sakhya bhav, madhurya bhav, सारे तरह के भाव दिखाते हैं वहां पे. He reveals all his opulences, all his leelas, all the rasas, everything. In other places he's a little bit limited. In other places he has more majestic type of appearance and there is more restrictions and reservations in how devotees can exchange with him. But in Vrindavan he's complete, he's पूर्ण पुरुषोत्तम. तो इसलिए कृष्णा को इसीलिए पूर्ण पुरुषोत्तम बोला जाता है, because this is a place of sweetness. It is most enchanting abode. तो यहाँ पर उन्होंने कितना मृग भक्षण लीला, दामोदर लीला, कितनी ऐसी लीला की जो बहुत ही स्वीट है, जो कहीं और देखने को नहीं मिलती. So he displays all those leelas so we can understand him, so we can be introduced, या इनका परिचय हो सके हमें, कृष्णा से हमें प्रेम हो सके. कृष्णा, we can start exploring our relationship with him and develop love for him.
तो ये वृंदावन धाम की महिमा है और ये कृष्णा इन वृंदावन है. So this two verses were for Krishna in Vrindavan. Okay, then let's go to verse 3rd. Please go ahead, Poonam Mataji. Is she still in the Yes, call? Mataji. Yes, Mataji. महाम्बोधिस्थिरे कनकरुचिरे नीलशिखरे वसन प्रसादान्त सहज बलभद्रेण बलिना सुभद्रा मध्यस्थ सकलसुर सेवा वसरदो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे. Very good. So अब क्या आता है? महाम्बोधिस्थिरे. अम्बोधि होता है ओशन, महा होता है ग्रेट ओशन. तो वो कृष्णा जो वृंदावन में रहते हैं, वो कृष्णा अब कहाँ गए हैं? एट द शोर्स ऑफ दिस ग्रेट ओशन. महा अम्बोधि पे आ गए हैं, द शोर ऑफ द ग्रेट ओशन. तीरे, तीरे मतलब शोर पे आ गए हैं. कनक रुचिरे नील शिखरे. तो नील शिखर या नीलाद्रि आपने सुना ना, नीलाचल या नीलकंधर, दैट इज जगन्नाथपुरी धाम, जो ब्लू सफायर माउंटेन है, जिसकी कनक रुचिरे, जिसकी एक गोल्डन ह्यू है. उस ब्लू माउंटेन जिसकी गोल्डन ह्यू है, जो एट द शोर ऑफ दिस ग्रेट ओशन है, वहां पर ये जगन्नाथ जी रहते हैं. कैसे रहते हैं? वसन प्रासादांता. ही लिव्स देयर. ही हैज, प्रासादांता मतलब ही हैज एस्टैब्लिश्ड हिमसेल्फ देयर. सहज, with whom? With his very powerful, very strong brother Balbhadra और बलदेव, जो बहुत ही पावरफुल, बहुत ही स्ट्रॉन्ग है. उस ब्रदर के साथ ये इन्होंने अपने आप को यहाँ पर एस्टैब्लिश कर लिया है. कहाँ पर एस्टैब्लिश कर लिया है? एट द शोर्स ऑफ दिस ग्रेट ओशन. सुभद्रा मध्यस्था. और उनके मिडल में कौन बैठी है? सुभद्रा महारानी बीच में बैठी हैं. और वो यहाँ पर क्या करते हैं? यहाँ बैठ के सकल सुर सेवा अवसर दो. सकल मतलब ऑल. सुरा, सुरा मतलब जो सेंटली लोग होते हैं, जिनमें डिवाइन या गॉडली क्वालिटीज होती हैं. सुर मतलब डेमी गॉड्स को भी बोलते हैं, जो देवी देवता को या फिर गॉडली डिवोटीज को, सेंटली डिवोटीज को सेवा अवसर देते हैं यहाँ बैठ के. ओके, सो यहाँ पे बैठे हैं एट द shores of the great ocean with his brother, very powerful brother. In the middle is Subhadra Maharani, and this blue mountain with the golden hue, and is giving seva avasar to the demigods. Okay, so this is now talking about Jagannath ji in his more औदार्य भाव. तो अब ये उनका थोड़ा मर्सीफुल मूड है कि ये सेवा अवसर दे रहे हैं यहाँ बैठकर. कृष्णा जिसको, जो वृंदावन छोड़ के कहीं नहीं जाते, वो यहाँ जगन्नाथपुरी में आकर, इस नीलाचल धाम में आकर इस तरीके से अपने भाई और बहन के साथ बैठे हैं. गोपीज और गोपास को छोड़कर और राधा रानी को छोड़कर यहाँ बैठे हैं इस फॉर्म में. ये उनका मर्सीफुल भाव है, ये उनका औदार्य भाव है. ठीक है, और कई वजह है जिसकी वजह से वो आए थे यहाँ पर, विच वी विल नॉट डिस्कस, बट बेसिकली कम हियर फॉर द बेनेडिक्शन ऑफ ऑल लिविंग एंटिटीज. जगन्नाथपुरी धाम की इतनी औदार्य भाव है वहां पे, इतनी महिमा है उनकी मर्सी की. दैट इज, इट्स सेड दैट इफ यू eat anything there, you get the benefit of eating prasadam. If you speak something there, you get the benefit of doing hari katha. If you walk there, you get the benefit of doing parikrama. If you sleep there, you get the benefit of being in samadhi. तो वहां पे इतने मतलब पूरा अनप्लग्ड मर्सी है वहां पे. बाकी तो हमने बात किया ही था कि रथ पे निकलते हैं, ये उनकी मर्सी है. सोते नहीं है, ये उनकी मर्सी है. आंखें खुली खड़के खड़े हैं ताकि कोई मिस ना हो जाए, ये उनकी मर्सी है. सारा टाइम खाना को खाते हैं, वो खाना पड़ता है उनको, सो दैट प्रसादम इज अवेलेबल एट ऑल टाइम्स टू ऑल पीपल. ये उनकी मर्सी है. तो ये इस तरीके से स्नान करने आते हैं बाहर, स्नान यात्रा में स्नान करने आते हैं बाहर. ही कम्स आउट टू बेद, पब्लिक बेदिंग के लिए, ये उनकी मर्सी है. और बहुत सारी स्टोरीज हैं जगन्नाथ जी की मर्सी की, जो आपने काफी सुनी होंगी. स्टोरीज दैट बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड, वंडरफुल रेसिप्रोकेशंस विद सो मेनी डिवोटीज, वो सब हैं कहानी, आप सुन सकते हैं. तो ये इस तरीके से उनका औदार्य भाव है. अच्छा, उसके बाद ये महोदधि है, या जिसको हम महाम्बोधिस तीरे बोल रहे हैं, जिस महान ओशन में. तो वहां पर कुछ वाटर बॉडीज हैं जगन्नाथपुरी में, जिसमें से एक जो बहुत ही ऑस्पिशियस है, दैट इज द ग्रेट ओशन. So you know that Jagannathpuri is situated at the shores of the great ocean, at the shores of the ocean. So ये इसमें महाप्रभु दिख रहे हैं, जिनकी कुछ लीलाएं हैं इस महोदधि में, in this great ocean. This is another one. So this is a great ocean.
सो वहां पर आकर बैठे हैं यमुना का तट छोड़कर. ओके. Is everybody okay? Can we keep going? I will go a little fast now. If you want to finish, we could probably finish another 20 minutes. Do you have that much time or should we continue some other time? माता जी 5:30 तक हो जाए तो कर सकते हैं. ठीक है, ओके. ठीक है माधवी जी, कीजिए आप ये गाएंगे. 4th वाला. यस. कृपा पारवारास जल जलद श्रेणी रुचिरो रमावाणी रामाय स्फुरद अमल पंकिरुमुख सुरेंद्राराध्य श्रुति गणशिख गीत चरितो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे. हरि बोल. कृपा पारावारा. तो अब ये ओशन के किनारे बैठे हैं और पारावार होता है ओशन, और ये खुद भी कृपा का ओशन है. ही इज द ओशन ऑफ मर्सी. ओके, ओशन के किनारे बैठे हैं और ये खुद भी कृपा पारावार. ओशन, पारावार होता है ओशन, कृपा ओशन ऑफ मर्सी है. जलद होता है क्लाउड. अब क्लाउड कई तरह के होते हैं, लेकिन वो क्लाउड जो पानी से भरा हुआ है, सजल जलद. ओके, this is the rain filled or water filled cloud, monsoon cloud. This is not like a summer cloud or spring cloud. This is a rain filled monsoon cloud, black cloud. सजल जलद, इसलिए वो काले रंग के भी है ना कृष्णा की तरह, इसलिए घनश्याम मेघश्याम वही रंग लेकर आए हैं. सजल जलद, तो जल से भरा हुआ क्लाउड है वो. और एक क्लाउड नहीं है, श्रेणी रुचिरो, श्रेणी है, रोज ऑफ ब्लैकिश क्लाउड की जितनी मर्सी निकलती है उनमें से. तो ओशन ऑफ मर्सी बनाने के लिए तो कितने सारे क्लाउड्स लगेंगे ना. So he is an ocean of mercy, and he's like the black cloud. Black cloud matlab monsoon filled, water filled cloud, full of mercy, and it's a row of beautiful clouds. Ruchiro matlab beautiful row of blackish clouds. That is that he looks like. और वो किसको ब्लिस देते हैं, ये इतनी मर्सी और ब्लिस जो उनमें से निकलती है वो किसको ब्लिस देती है? ऐसे वैसे लोगों को नहीं, रमा को, मतलब रमा मतलब लक्ष्मी देवी को. वाणी, वाणी मतलब सरस्वती को. रामा मतलब ब्लिस देती है. राम का मतलब होता है, रिमेम्बर, राम मतलब ब्लिस. तो ब्लिस देते हैं वो लक्ष्मी और सरस्वती को यहाँ पर. स्फुरद अमला पंखेरुहा मुखा, क्योंकि लक्ष्मी देवी और सरस्वती देवी, लाइक दे डोंट हैव एंट्रेंस इनटू वृंदावन. So these people that are in these demigods that are in ऐश्वर्य भाव, इन लोगों को भी तो चाहिए ना रस और नेक्टर एंड ब्लिस एंड मर्सी, तो उनको यहाँ पर मिलती है वो सारी. इसलिए डेमिगॉड्स को यहाँ पर जगन्नाथपुरी में बहुत मेजर उनका रोल है और उनकी एंट्रेंस है. आई विल शो यू सम पिक्चर्स अभी कि डेमिगॉड्स का कैसे रोल है जगन्नाथपुरी में. काफी मेजर उनके ऊपर मर्सी बिछती है. इसीलिए तो बोला था ना, सकल सुर सुरा सेवा अवसर दो, तो उनको सेवा का बहुत अवसर मिलता है यहाँ पर. तो ये रमा और वाणी को ब्लिस देते हैं यहाँ पर. स्फुरद अमला पंखेरुहा मुखा, और उनका फुल ब्लोन लोटस जैसा पंखेरुहा. पंखेरुहा होता है जो मड में से निकलने वाला, मड में से निकलता है कौन? लोटस. पंखेरुहा होता है जो मड में से निकलता है, मड का बाय प्रोडक्ट, उसको बोलते हैं लोटस. मुख, मुख मतलब फेस है जिसका. अमल मतलब स्पॉटलेस. स्फुरद मतलब इफल्जेंट, जिसका एकदम स्फुरद, एकदम इफल्जेंट, ऐसे स्पॉटलेस लोटस लाइक फेस है, वो प्लेजर देता है टू लक्ष्मी एंड सरस्वती. ओके, और ये क्या, ये ओशन ऑफ मर्सी है, और ये ही इज लाइक अ रो ऑफ ब्लैकिश क्लाउड्स फुल ऑफ रेन वाटर, फुल ऑफ मर्सी. और इनकी आराधना और कौन करते हैं? और देवी देवता. सुरेंद्रेर आराध्या. तो आप देखोगे बार बार जगन्नाथ अष्टकम में देवी देवताओं का नाम आएगा, क्योंकि यहाँ पे इनका बहुत महिमा है. सुरेंद्रेर, सुरेंद्र मतलब इंद्र देवता, और जो उनके जैसे बड़े बड़े डेमिगॉड्स हैं वो आराधना करते हैं. और कौन आराधना करता है? श्रुति गणा. श्रुति क्या होता है? श्रुति क्या होते हैं? वैदिक मंत्रस, राइट? जैसे वेदास एंड उपनिषद्स आर श्रुति मंत्रस, जैसे कि पुराणास आर स्मृति मंत्रस, वेदास एंड उपनिषद्स आर श्रुति मंत्रस. तो जिनका चरित्र का गान टॉप मोस्ट हिम्स में कौन करते हैं? श्रुति गण करते हैं. वेदास जिनका गान करते हैं, उपनिषद जिनका गान करते हैं, जिनके चरित्र का. वेदे गाए जहारा चरितो, तो वहां पे वो गुरु के बारे में बोला गया, लेकिन यहाँ पे श्रुति गणा शिखा, अपने टॉप मोस्ट
वॉइस में वेदास और उपनिषद जिनका गान करते हैं, जिनके चरित्र का, और जिनकी आराधना इंद्र आदि देवी देवता करते हैं, उस जगन्नाथ स्वामी को मे ही बी द ऑब्जेक्ट ऑफ माय विजन, मे ही स्टे इन द पाथ ऑफ माय विजन एट ऑल टाइम्स। तो यहाँ पर भी देवी देवतास के लिए और उनकी ओशन ऑफ मर्सी, मतलब उनके औदार्य भाव की महिमा बताई गई है। तो जो वर्स 3rd and 4th थी उसमें औदार्य भाव था, पहले 2 वर्सेस में माधुर्य भाव था, वृंदावन के बारे में बात की गई थी। वर्स 3rd और 4th में कैसे अपने डिवोटीज के लिए मर्सी करते हैं और यहाँ आके बैठ गए हैं महाबोधि के तीर पे, और ऐसे देवी देवताओं की और दूसरे डिवोटीज के लिए मर्सी बरसा रहे हैं। That is being described. So Audarya mood is being described. Now I'll show you some slides showing how all the demigods are serving there. All the demigods are practically serving there in Jagannath Puri. So ये यमेश्वर टोटा है जहाँ पे यमराज सेवा करते हैं। ये बिमला देवी टेम्पल है जहाँ पे आपको पता है कि सबसे पहले जब प्रसाद जगन्नाथ जी को भोग लगता है उसके बाद वो बिमला देवी के पास जाता है। बिमला देवी इज नन अदर देन मदर पार्वती, उनके पास जाता है, तो इसलिए वो तब वो महाप्रसाद बनता है और फिर वो जनरल पब्लिक को मिलता है। तो सबसे पहले भोग बिमला देवी को लगता है, तो उनको देखो कितना मर्सी मिल रहा है, सीधा प्रसाद मिलता है। फिर एकादशी, आपको पता है कि एकादशी देवी वहां पर तपस्या करती हैं और अपने हाथ बांध कर बैठी हैं। उसके बाद ये मुक्ति मंडप है वहां पर, जहाँ पे ब्रह्मा जी और दूसरे देवी देवता आते हैं और बहुत सारी डिस्कशंस करते हैं अबाउट कि किस जीवा को लिबरेशन मिल सकती है, किसको नहीं मिल सकती। इस तरीके के बहुत सारे इंपॉर्टेंट मैटर्स जो ब्रह्मा जी करते हैं एज अ सेकेंडरी क्रिएटर, वो डिस्कस होते हैं इस मुक्ति मंडप में। सारे देवी देवता आते हैं। हनुमान जी की कई सारी फॉर्म्स वहां पर रहती हैं, जैसे एक ये बेड़ी हनुमान Are है you जो showing the अपने screen? या आयुष सिंह I can't see, and maybe others इन can. I अदर्स don't सी। know. यस माता जी, हमें तो दिख रहा है ये हनुमान जी, बड़ी बेटी Oh, हनुमान so जी slow. का। Okay, thank you. तो ये बेड़ी हनुमान जो है वो भी अपने आप को बांध के वहां बैठे हैं, वो भी सेवा करते हैं। और हर एक हनुमान की अलग सेवा है। वहां पे कई फॉर्म्स ऑफ हनुमान बैठे हैं। कनपट हनुमान बैठे हैं, ठीक है, जो ओशन की नॉइज को कम करते हैं, कि ओशन की नॉइज मंदिर में बिल्कुल नहीं आती, श्री मंदिर में। तो ये कनपट हनुमान बैठे हैं। इस तरीके से कई सारे देवी देवता। अच्छा, आपको वो आई डोंट नो इफ यू रिमेम्बर, वो शंख वाले पिक्चर में 8 रुद्रा बैठे हैं अराउंड द जगन्नाथपुरी। 8 Shiva, 8 forms of Shiva, 8 forms of Shiva are situated all around जगन्नाथपुरी धाम। तो इस तरीके से बहुत सारे डेमीगॉड्स जो हैं वो जगन्नाथ जी की सेवा करने के लिए, और सबने अपनी अपनी अलग अलग सेवा ली हुई है टू सर्व जगन्नाथ जी। सो इन दिस वे, और बताया था मैंने आपको स्वर्ग द्वार है। स्वर्ग द्वार इज यूज्ड बाय अस जो लोग हैं, फ्यूनरल पायर की तरह वहाँ पे यूज होता है। वहाँ पे वो जलाई जाती हैं बॉडीज, डेड बॉडीज लेके जलाई जाती हैं, लेकिन वो एक्चुअली देवी देवताओं के आने का, उनकी एंट्रेंस है। वो अपने हेवनली प्लैनेट से वहां पर आकर, उनकी पार्किंग लॉट है एक तरह से, वहां पे आके रुकते हैं, अपना पार्क करते हैं और फिर वहां से एंट्री करते हैं इनटू जगन्नाथपुरी। उसको स्वर्ग द्वार बोलते हैं। ओके, लेट्स कीप गोइंग। माता जी प्लीज गो अहेड। रथारूढो गच्छन् पथि मिलितभूदेवा पटले स्तुति प्रादुर्भावं प्रतिपदमुपाकण्ड सदया दया सिन्धुर्वन्धो सकल जगतां सिन्धुसुतया जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। हरि बोल। सो अब आ गया उनका थोड़ा ऑपुलेंस शुरू हो गया, ठीक है। रथारूढ़ो गच्छम, अब रथ पे चढ़ के जा रहे हैं। अब हमें इंटरनल मूड तो पता है रथ यात्रा का, अब थोड़ा बाहर की बात है, ये एक्सटर्नल जो लोगों को दिखता है कि रथ पे बैठ के जा रहे हैं ना, राजा है ना, रथ पे बैठ के निकले हैं। रथारूढ़ो गच्छम पथि मिलिता, पथ में उनको कौन मिलते हैं? भूदेवा पटलय। भूदेव होते हैं जो इस भूमि के टॉप मोस्ट लिविंग एंटिटीज होते हैं, लाइक ब्राह्मणास। So he meets these Bhudevas or these Brahmanas who offer many stutis to Lord Jagannath ji. स्तुति प्रादुर्भावम, तो उनकी बहुत सारी स्तुतियां गाते हैं। इसीलिए जब हम भी जाते हैं रथ यात्रा में तो हमें हरे कृष्णा महामंत्र या कोई और प्रेयर्स या कुछ ऐसा चैंट करना चाहिए। तो क्योंकि ये जो भूदेव हैं, जो ब्राह्मण्स हैं, ऐसे नहीं ब्राह्मण्स बाय बर्थ, बट ये क्वालिफाइड डिवोटीज जो हैं, ये दे आर सिंगिंग स्तुतिज, प्रेयर्स, ग्लोरिफिकेशंस ऑफ द लॉर्ड, और लॉर्ड उनको सुनते हैं।
अब आप याद रखो कि ये जगन्नाथ जी जो है द्वारकाधीश हैं, वो अपनी प्रजा की बात सुनते हैं। दिस इज नॉट लाइक वृंदावन ब्रज गोपा कृष्णा, दिस इज नॉट द श्याम सुंदर कृष्णा। जब श्याम सुंदर कृष्णा को ब्रह्मा जी प्रेयर्स ऑफर करने आए थे, सो कृष्णा वाज बिकमिंग वेरी एंसी कि ये क्यों मुझे ये तंग कर रहा है व्यक्ति और मुझे तो जाके खेलना है। So he does not, he just wants to play and he just wants to have his pastimes. He does not want to sit and listen to prayers. But this is Jagannath ji, this is Dwarkadhish Krishna. So he is listening to the prayers being offered by devotees on the way. प्रतिपदम, हर एक पद पे उनको ये स्तुतिज मिल रही हैं, ये प्रेयर्स मिल रही हैं। उपकर्ण्या, उनको वो अपने कान से सुनते हैं, हियर करते हैं। सदया, वेरी मर्सीफुली, वेरी great pleasure, he takes delight in hearing the prayers, the hymns, the mantras, the stutis, the glorifications that are being offered by the devotees. तो रथ पे चढ़ के जा रहे हैं, रथारूढ़ो गच्छन्, पथि मिलिता, पथ में मिलते हैं भूदेव जो डिवोटीज हैं, पटले मतलब ग्रुप ऑफ डिवोटीज, स्तुति प्रादुर्भावम जो उनकी स्तुतियां गा रहे हैं, और प्रतिपद पे जगन्नाथ जी उनको सुन रहे हैं विद ग्रेट डिलाइट एंड वेरी मर्सीफुली। और ये कैसे क्या है, ये दया सिंधु बंधु, ही इज द ओशन ऑफ मर्सी। पहले भी आया था कृपा प्रादुर्भाव, अब उसी का ही डिफरेंट आया है दया सिंधु। सिंधु होता है ओशन, ओशन ऑफ मर्सी है। बंधु सकल जगताम, सारे जगत के बंधु हैं, फ्रेंड ऑफ होल वर्ल्ड। इसलिए प्रभुपाद ने कहा था कि ही इज जगन्नाथ, ही इज नॉट जस्ट पुरीनाथ, ही इज जगन्नाथ, सो ही नीड्स टू कम आउट टू द होल वर्ल्ड। इसलिए उन्होंने रथ यात्रा सारी दुनिया में शुरू की थी। ही इज द सकल जगत के बंधु हैं, फ्रेंड ऑफ द होल वर्ल्ड। सिंधु सुतया, सिंधु सुता, ओशन डॉट, ही इज सिटिंग विद द डॉटर ऑफ द ओशन। सिंधु सुता कौन है, किसका नाम है सिंधु सुता? हु इज द डॉटर ऑफ द ओशन? लक्ष्मी। माता जी, हाँ लक्ष्मी जी। लक्ष्मी जी है ना, लक्ष्मी जी ओशन में से निकली थी ना जब चर्निंग ऑफ ओशन हुआ था, तो इसलिए वो सिंधु सुता हैं। वो सिंधु सुता के, तो ऐसे नहीं ये राजा हैं, ये राजा बैठे हैं और लक्ष्मी जी, जगन्नाथ जी लक्ष्मी जी के साथ बैठे हैं। ये फ्रेंड है ऑफ द होल वर्ल्ड, ये वो नारायण है, ये ऐसे कोई छोटे मोटे व्यक्ति नहीं है, बट ही इज कम आउट टू गिव मर्सी। सो ये उनके ऑपुलेंस है, इस वर्ष में उनकी ऑपुलेंस है, क्योंकि वो लक्ष्मी जी के साथ बैठे हैं, रथ पे चढ़ के जा रहे हैं और सारे डिवोटीज उनको प्रेयर्स ऑफर कर रहे हैं। ओके, लेट्स कीप गोइंग, नेक्स्ट वन। परम ब्रह्म पीड़ा को वलय दलोत्फुल्लनयनो निवासी नीलाद्रो निहित चरणो नंत शिरसि रसानंदी राधा सरस वपुरालिंगन सुखो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतो में। हरि बोल। अब आ जाएगा एक लाइन में सिर्फ, अब ऑपुलेंस जो है वो मर्ज हो जाएगी इनटू विप्रलंबा थोड़ा सा, है ना। अब कृष्णा मिस करेंगे राधा रानी को। अब देखिए कैसे होता है। पर ब्रह्मा यहाँ पे ब्रह्मा जी के लिए बोला गया है। पीड़ा कुवल्या, पीड़ा कुवल्या या कुवल्या पीड़ से किसी को कुछ याद आता है? क्या याद आता है? पीड़ा कुवल्या, कुवल्या हाँ पीड़। माता जी, किसी का नाम है कौवल्या पीठ, ऐसा कुछ सुना तो है। हाँ, किसका नाम है? कौन था कुवल्या पीड़? कोई डीमन था क्या? कोई और फ्रूट वेंडर थी नहीं, अब निवेदिता फूल, है। फूल निवेदिता। वाली नहीं। कुवल्या पीड़ कौन था? इट वाज नॉट कुब्जा, वाज शी? आप सही जगह पहुंच गए, आप मथुरा पहुंच गए आप। यस, एक और गैस। मथुरा में कोई था, इट वाज द एलिफेंट, कुवल्या पीड़। जो एलिफेंट बाहर रेसलिंग रिंग के बाहर खड़ा किया था कंसा ने कृष्णा बलराम को मारने के लिए, कुवल्या पीड़ था उसका नाम। ठीक है। अच्छा, somebody wrote in the chat elephant. और somebody did, okay. Yeah. Yeah, I think रेखा माता जी। So कुवल्या पीड़ का मतलब, यहाँ पे उस हाथी के बारे में नहीं बात की गई, but I just wanted you to remember that. कुवल्या पीड़ का मतलब होता है क्राउन ऑफ अर्थ। तो ब्रह्मा जी अपने सर पे क्राउन डालते हैं, किस चीज का? अपने सर पे ग्रहण करते हैं क्राउन की तरह। किसको? दलोत्फुल्ल नयनो, जगन्नाथ जी के नयन जो एकदम ऐसे फुल्ली ब्लॉसम लोटस की तरह खुले हुए हैं, बिल्कुल ऐसे खुले, दिख रहे हैं कितने बड़े बड़े नयन। ये जो पूरे फुल्ली ब्लॉसम्ड
कमल की तरह दलोत्फुल्ल, लोटस पेटल जो लोटस फ्लावर जो कंप्लीटली ओपन है, उसकी तरह दलोत्फुल्ल नयनों को अपने ब्रह्मा जी अपने सर पे ग्रहण करते हैं एज अ क्राउन। ठीक है, आपको पता है एक हमारे सन्यासी भी हैं जो अपने सर पे जगन्नाथ जी को लेके चलते हैं। आई डोंट नो इफ यू हैव सीन हिज पिक्चर, इट्स वेरी फेमस। महाविष्णु स्वामी महाराज उनका नाम है। ही कैरीज जगन्नाथ जी ऑन हिज हेड। उनके उनके पास एक हैट है, उसके ऊपर उसके ऊपर जगन्नाथ जी हैं, बैठते हैं, विराज करते हैं। तो इसी तरीके से ब्रह्मा जी भी अपने सर पे, इट इज पोइटिक। ठीक है, इसका मतलब ऐसे नहीं कि उन्होंने सच में ऐसे उनकी आंखें अपने सर पे रखी हुई हैं, ऐसा नहीं है। ब्रह्मा जी अपने सर पे आंखें रख के चलते हैं, मतलब कि वो इस दुनिया का सारा काम जो चला रहे हैं, ही इज डूइंग इट अंडर द सुपरविजन, अंडर द सबसर्वियंस, अंडर द गाइडेंस, अंडर द इंस्ट्रक्शंस ऑफ जगन्नाथ जी। इसका मतलब ये है। तो ये पोइटिक मतलब है इसका, ऐसे नहीं है कि वो अपने सर पे सच में ऐसे फिजिकली लेके चल रहे हैं। सो जिनके सर पे जगन्नाथ जी की आंखें क्राउन की तरह रहती हैं। ओके, अब ये तो सर की बात है किसी के। अब हम किसी के पैरों की बात करेंगे। अब सॉरी, जगन्नाथ जी के पैरों की बात करेंगे। निवासी नीलाद्रव, तो ये नीलाद्री में रहते हैं ये जगन्नाथ जी। ठीक है, लेकिन आप देखोगे कि उनके पैर तो दिखते नहीं। उनके पैर कहाँ पे हैं? निहित चरणों, निहित मतलब दिखाई नहीं देते, चरण। नीलाद्री में रहने वाले इन जगन्नाथ जी के चरण दिखाई नहीं देते, क्योंकि वो कहाँ पे हैं? अनंत शिरसी, अनंत शेष जो हैं उनके सर पे हैं। अनंत शेष ने अपने सर पे जगन्नाथ जी के चरण लिए हुए हैं। You know that it's described that अनंत शेष carries all the universes on his head, right? So उन्होंने वो कैसे किए हुए हैं? जगन्नाथ जी के पैर अपने सर पे रखे हुए हैं। तो इसका मतलब बेसिकली शोइंग अगेन सबसर्वियंस टू द लॉर्ड। आंखें अपने सर पे रखना या पैर अपने सर पे रखने का मतलब है कि मैं इनके अंडर काम करता हूँ, मैं इनके पैरों के नीचे रह के काम करता हूँ, ये मतलब है यहाँ पे। इट्स अ पोएटिक मीनिंग। सो जिसने अपने सर पे रखे हुए हैं वो ब्रह्मा जी हैं। क्या रखा हुआ है? पूरे फुल्ली ब्लॉसम्ड आईज ऑफ जगन्नाथ जी। और पैर हमें दिखाई नहीं देते जगन्नाथ जी के, क्योंकि वो किसके सर पे हैं? अनंत शिरसी, अनंत शेष ने अपने सर पे धारण किए हुए हैं जगन्नाथ जी के चरण, पैर। लेकिन उनकी बॉडी कहाँ है जगन्नाथ जी की? अब आएगा विप्रलंबा भाव, माधुर्य भाव। बॉडी कहाँ है? हार्ट कहाँ है? बॉडी की इंपॉर्टेंस इसलिए है क्योंकि उसमें हार्ट है। हार्ट कहाँ है? हार्ट है राधा रानी के पास। तो वपुर, वपुर कहाँ है? वपु या बॉडी कहाँ है? ठीक है, दलोत्फुल्ल नयन तो हो गए ब्रह्मा जी के पास, चरण हो गए अनंत शेष के सर पे। वपु कहाँ है? रसानंदो राधा, सरसा वपुर। सो ये जो रस से भरा हुआ, जो राधा के प्रेम से भरा हुआ जो वपु है, जो हार्ट है, वो राधा रानी के पास रहता है। और आलिंगन सुखो, और राधा रानी को आलिंगन करता है। राधा रानी को आलिंगन करने का मतलब उनकी डिवोशनल सर्विस, उनके प्रेम को एक्सपीरियंस करता रहता है सारा टाइम। तो उनकी हार्ट जो है वो डीपली कनेक्टेड है टू राधा रानी। सो हार्ट कहीं नहीं गया। तो आंखों से देखते हैं, पैरों से दुनिया को चलाते हैं, सारी दुनिया को चलाते हैं, लेकिन अपनी हार्ट जो है वो राधा रानी के पास छोड़ा हुआ है, जो उनको आलिंगन करती हैं। तो इस तरीके से रसानंद, और राधा को आनंद देते हैं, राधा को आनंद देते हैं अपने उस बॉडी से जो उन्होंने उनके साथ आलिंगन में रखा हुआ है। इज एम्ब्रेसिंग राधा रानी एंड हर डिवोशनल सर्विस, हर लव। तो उनको सुख देते हैं, इस तरीके से आलिंगन का सुख देते हैं वो जगन्नाथ स्वामी। तो अब आपको दिख रहा है कि कैसे ये कृष्णा है, हु इज इन कंप्लीट विप्रलंभ भाव, इन द मूड ऑफ सेपरेशन फ्रॉम राधा रानी। हार्ट इज विद राधा रानी। पर विप्रलंभ भाव के बारे में इतनी बात पे अब ये जो खत्म हो जाएगा जगन्नाथ अष्टकम, क्योंकि अब क्या शुरू होगा? नाउ द डिवोटी आदि शंकराचार्य अब बोलेंगे कि मुझे इस कृष्णा से कुछ, जब हम प्रेयर करते हैं, ग्लोरीफाई करते हैं, फिर हम कुछ मांगते भी हैं, तो वो कुछ मांगेंगे। अब देखते हैं कि क्या मांगेंगे। तो यस माता जी, प्लीज रिसाइट। न वैयाचे राज्यं न च कनकमाणिक्यं विभवम् न याचे अहं रम्यं सकलजनकाम्यं वरवधूम् सदा काले काले प्रमथपतेन गीतचरितो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवातु में। हरी हरी। तो वो कहते हैं, वो क्या मांगते हैं? वो कुछ नहीं मांगते। वो कहते हैं, हर लाइन, हर वर्ड्स में तो मांग ही रहा हूं ना कि मुझे लेट यू बी द ऑब्जेक्ट ऑफ माय विजन। मुझे कुछ नहीं चाहिए। वो कह रहे हैं ना वै याचे राज्यम, ना मुझे कोई किंगडम चाहिए। किंगडम का मतलब है कोई भी
नेम, फेम, रेपुटेशन। इस दुनिया में लोग 3 चीजें मांगते हैं, ठीक है। माया देवी जो है उसके पास हमें देने के लिए सिर्फ 3 ही चीजें हैं। एक तो है राज्य, राज्य मतलब नेम, फेम, ऑनर, रेपुटेशन, लाइक दैट। एक है कणक माणिक्य, कणक मतलब गोल्ड, माणिक्य मतलब ज्वेलरी, मणि, है ना, ये सब वेल्थ टाइप चीजें हैं, मनी या वेल्थ है देने को। ना याचे अहम रम्याम, या फिर उसके पास माया देवी हमें कुछ ऑपोजिट जेंडर के साथ कुछ सेक्सुअल या सेंसुअल प्लेजर टाइप दे सकती है, ऑफर कर सकती है। वो कहते हैं मुझे वो भी नहीं चाहिए। जो सकल जन काम्याम, जो सारी दुनिया को जिसकी कामना है, जिसकी डिजायर है, काम है, जिसका लस्ट है, सकल जन काम्यम। ना याचे, आई डोंट वांट अहम रम्याम, वो ब्यूटीफुल वुमेन भी मुझे नहीं चाहिए जिसकी सारी दुनिया को डिजायर है। वर वधुम, ऐसी ब्यूटीफुल ब्राइड या ऐसी ब्यूटीफुल वाइफ या ऑपोजिट जेंडर कह सकते हो आप, नहीं चाहिए। ना मुझे राज्य चाहिए, ना मुझे कोई वेल्थ चाहिए, मनी चाहिए। विभवाम मतलब अनलिमिटेड भी वेल्थ दे दो, अनलिमिटेड राज्य भी दे दो, नहीं चाहिए। सदा काले काले, काल क्या होता है? टाइम। काले काले बार बार बोला, एट ऑल टाइम्स, काले काले एट ऑल टाइम्स। अब आएगी बात किसकी? शंकराचार्य अपने बारे में ही देखो क्या बोलेंगे। शंकराचार्य कौन है? शंकराचार्य इज लॉर्ड शिवा, राइट? व्हाट डिड ही से? व्हाट डज ही से? सदा काले काले एट ऑल टाइम्स प्रमथ पतीना। प्रमथ कौन है? प्रमथ कौन है? प्रमथ इज दुर्गा देवी। पतीना, दुर्गा देवी के पति कौन है? हस्बैंड इज लॉर्ड शिवा। लॉर्ड शिवा गीत चरितो, जिसका गान गाते हैं एट ऑल टाइम्स, वो जगन्नाथ स्वामी में ही बी द ऑब्जेक्ट ऑफ माय विजन। जो शिवा जिसका गान गाते हैं एट ऑल टाइम्स, वो जगन्नाथ स्वामी में बी द ऑब्जेक्ट ऑफ माय विजन। मुझे उस जगन्नाथ स्वामी से कुछ नहीं चाहिए। ये 3 चीजें जो माया दे सकती है इस दुनिया में, मुझे वो तीनों ही चीजें नहीं चाहिए जगन्नाथ स्वामी से। मुझे वो चाहिए जिसका गुणगान शिवा करते हैं, ठीक है। ओके, लेट्स डू नेक्स्ट। प्लीज गो अहेड। Yes, ma'am. हर त्वं संसारं द्रुततरम् असारं सुरपते, हर त्वं पापानां वित्ततिम् अपरां यादवपते, अहो दीननाथे निहितचरणो निश्चिदमिदम्, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। हरी हरी। अब वो कहते चलो कुछ मांग भी लेता हूँ। क्या मांगूंगा? डिवोटी ने पहले तो, अभी तक तो जगन्नाथ जी को ही मांग रहे थे, अब बोल रहे हैं ठीक है, हरा त्वम संसारम, कुछ देना है तो क्या दो? सारा संसार हर लो। हर लो, हरी हो ना, चोर हो, सारा संसार हर लो, चुरा लो, मटेरियल एग्जिस्टेंस को चुरा लो। द्रुता तारम असारम, ये जो टेस्टलेस असार वाला जो ये सारा द्रुता था, इससे ताड़ दो। इस सारे संसार से ताड़ दो। सुरपते, ओ लॉर्ड ऑफ डेमीगॉड्स, ओ लॉर्ड ऑफ डेमीगॉड्स, सुरपते, ओ लॉर्ड ऑफ डेमीगॉड्स, इस टेस्टलेस संसार से मुझे ताड़ दो और ये सारा संसार हर लो। और क्या हर लो? हरा त्वम पापानम, सारे पाप हर लो, सारे पाप हर लो। कौन से? अपराम, अपार पाप किए हैं मैंने, अनलिमिटेड पाप किए हैं मैंने, वो सारे पाप हर लो। ओ यादवपति, तो कभी उनको डेमिगॉड्स के साथ रिलेशनशिप याद करा रहे हैं और कभी उनको अपना यदुस के साथ रिलेशनशिप याद करा रहे हैं। ओ लॉर्ड ऑफ यदु डायनेस्टी, वो सारे पाप हर लो जो मैंने किए हैं। अहो दीननाथ है, अनाथ, ये वर्ड अनाथ है कि दीन हो गया फॉलन, अनाथ हो गया ऑर्फन, कि जो इस दुनिया के फॉलन अनाथ लोग हैं, जिनका कोई नाथ नहीं है। अनाथ मतलब जो ऑर्फन होता है, ऑर्फन मतलब जिसका कोई शेल्टर नहीं होता, जिसका कोई मास्टर नहीं होता, जिसका कोई केयर टेकर, कोई वेलविशर नहीं होता, फ्रेंड नहीं होता, अकिंचन होता है। तो इस दुनिया में हम सभी जिसको भगवान को हम भूल गए हैं, वो दे आर ऑल अनाथ एक्चुअली, हु हैव फॉरगॉटन देयर सुप्रीम फादर, सुप्रीम मास्टर, सुप्रीम कंट्रोलर, सुप्रीम वेलविशर, सुप्रीम फ्रेंड, दे आर ऑल अनाथ इन दिस वर्ल्ड। वो फॉलन अनाथ लोगों को अपनी उसको निहित चरण, अपने चरण के नीचे रख लो। पहले भी आया था ना, अपने निहित चरण, अपने चरणों के नीचे रख लो। निश्चिदम idam, this is guaranteed that if you put them under your feet, then all their material existence and paap will go away. Okay, so such fallen people, such anath, shelterless people, keep them under your feet, and it is guaranteed that all their samsar, all their paap will be destroyed.
Okay, this is guaranteed. So such Jagannath ji, जिसका इतना influence है, may he be the object of my vision. So he's saying basically, destroy this material world for me, destroy all my पाप, all my sins. जैसे कि हम बोलते हैं ना, नरसिंह देव के लिए भी बोलते हैं सारे hindrances, सारे obstacles निकाल दो. इस तरीके से वो जगन्नाथ जी को भी बोल रहे हैं कि सारा संसार, सारे पाप मेरे निकाल दो और अपने चरणों के नीचे रख लो, because just like any fallen akinchen person. Then this is the श्रुति फल. श्रुति फल होती है वो वर्स, तो ये 8 वर्सेस अष्टकम हो चुका है. 9th वर्स जो है ये श्रुति फल है. मतलब इसको आपने जो पढ़ा, आपने जो सुना, उसका क्या फल है. जगन्नाथाष्टकं पुण्यं य पठेत् प्रयतः शुचि सर्व पापा विशुद्धात्मा विष्णुलोकं स गच्छति. So this is straightforward. जगन्नाथ अष्टकम पुण्यम, इस पुण्य, इस प्योर जगन्नाथ अष्टकम को जो पढ़ता है, पठेत नहीं पढ़ता है, पूरी स्टडी करता है, जैसे हमने अभी स्टडी किया. शुचि मतलब प्योरिटी से, with purity in his heart. सर्व पापा विशुद्धात्मा, he becomes cleansed of all sins and attains Vishnu Lokam Sagachati. So जो भी उसकी desired destination in the spiritual sky, in the Vishnu Lok, he will go there. So this is the end of our Jagannath Ashtakam. I'll stop here. Thank you so much everyone for listening. Sorry we went a little long, but I had to set up that premise of 2 stories. Please share, ask any questions, see if you have any doubts, if it helped, or in your meditation on Lord Jagannath for the Rath Yatra. Thank you, Mataji, for the wonderful class. The Ashtakam is very poetic, isn't it? Got a lot of metaphors and it's beautiful. Yes, Mataji, it will make memorizing it easier also. If we know the meaning, then it makes it more relishable. When you sing, तो ज़्यादा मजा आएगा sing करने में, क्योंकि आपको समझ आएगा एकदम. Thank you so much for joining. चलिए, hoping we have a wonderful Rath Yatra. And Yes, please, Prabhupada has brought Rath Yatra to the whole world. This is the mercy of Prabhupada. He said this is not Purinath, this is Jagannath. है ना? So we have to pull the rope of Jagannath ji with the feeling. Imagine Radha Rani और गोपीज को कैसा फील हो रहा होगा अगर उनको कृष्णा को, द्वारकाधीश कृष्णा को काट पे डाल के अपने वृंदावन लेके जाते. ऐसे काट को पुल करना है with that emotions, that feeling. ये देखिए चैतन्य महाप्रभु, उनको कैसे फील होता होगा. चैतन्य महाप्रभु is Radha in the mood of Radha Rani. So राधा रानी उस कृष्णा के सामने नाच रहे हैं जो कृष्णा उनसे सेपरेशन में है, और वो जगन्नाथ जी को देखते थे और उनको जगन्नाथ जी हर जगह दिखते थे. उस मूड में डांस करना है, उस मूड में गाना है और कीर्तन करना है, उस मूड में रोप को पुल करना है, that we are pulling him back to वृंदावन of her heart. और इतना क्लीन रखना है अपने हार्ट को वृंदावन बना लेना है ताकि कृष्णा उसमें एंटर कर सके. So and then may Jagannath will be in our vision at all times. May he be the object of our remembrance, the goal of our life. Okay, thank you so much. Anybody else wants to share anything? Or Mataji, wonderful class. Hari Bol, Hare Krishna. Mataji, you want to share anything? Nagarchand Prabhu, Avni Vedahi, my mom. हमने तो डिसाइड किया है कि हम तो नहीं कुरुक्षेत्र से ले जाने देंगे. वो तो कुरुक्षेत्र में हमारे पास ही रहेंगे, ये कोई बात नहीं है. That's right. हाँ, जो कुरुक्षेत्र वाले लोग हैं वो वही रखेंगे. हाँ, ठीक है. और बताइए और कुछ. माताजी थैंक यू, आपने जो जगन्नाथ अष्टकम का मीन्स समझाया ना, वो सुनकर बहुत अच्छा लगा. फर्स्ट टाइम हमने पढ़ा तो था और सुना भी था, बट उसका मीन्स नहीं, उसका अर्थ नहीं पढ़ा था पहले कभी. तो बहुत अच्छे से आपने समझाया, और उसको पढ़ने के बाद अभी पता है इतना एक्साइटेड हो रहे हैं जगन्नाथ रथ यात्रा के लिए. अभी कल का दिन ऐसा थोड़ा ऐसा लग रहा है, कल वेट करना पड़ेगा. I know. कल थोड़ा बोरिंग लग रहा है नहीं. हाँ, सच में माताजी बोरिंग सा लग रहा है. हाँ, नहीं मजा आएगा. इसलिए I wanted to set this, I wanted to show you. हम ऐसे गाते हैं कई बार, लेकिन हम उसमें बीच में घुसते नहीं हैं. उसमें सारे मूड हैं. और आप सोचो जगन्नाथ जी आपको देख रहे हैं, आप जगन्नाथ जी को देख रहे हो, आप उनके सामने खुल के डांस करो, खुल के गाओ, कीर्तन करो, नो बार्स हेल्ड, और पूरा सबको दर्शन दो, लोगों को बुला बुला के दर्शन दो.
है ना, लोगों से रोप टच करवा सकते हो तो टच करवाओ, प्रसाद दे सकते हो तो प्रसाद दो, जो कर सकते हो। और कितने आपने सुना कितना फल मिलता है। और ये अष्टकम हम गाएंगे, बारंबार गाएंगे रथ यात्रा में, तो बहुत मजा आएगा। चलिए ठीक है, I'll stop here। आपने हम सबको जो सेवा दी है ना, वो थैंक यू माता जी, थैंक यू सो मच। मैंने तो कोई सेवा नहीं दी। होपफुली हम लोग झाड़ू लेकर आएंगे, कुछ 2-3 झाड़ू, एंड विल बी ब्रूमिंग इन फ्रंट ऑफ द और माता जी मैं भी प्रताप उनके रुद्र की जगन्नाथ जी, तरह। माता जी मैं उनके जगन्नाथ जी देखने जा रही हूँ अभी। Okay. मैं आपको फिर बताती हूँ। Yes, Mataji. Hare Krishna. Thank you everyone for joining. Vancha kaltarubhischa kripa sindhubhyaya vacha patita nam bhavanebhyo vaishnavebhyo namo